Hello, my dear students. In this session, we are going to take up questions related to time, speed, distance that have appeared in CUET examination and CMAT examination. And we will also discuss the basics of it. चलिए start करते हैं. So time, speed and distance has one important formula, that is time into speed is equal to distance. Whenever time is constant, time is same, the distance will be proportional to speed. If time is same in two cases, so higher the distance, higher the speed, higher will be the distance. So distance is proportional to speed in that case. Or speed could be same. If speed is same, in that case, the travel distance will be proportional to time. जितना ज़्यादा time के लिए travel करेंगे उतना ज़्यादा distance traveled होगा. Third scenario, and the very important scenario, is when distance is same. When in two cases, distance is same. In that case, time into speed is same, and hence time is proportional to 1 by speed. So if the ratio of time is t1 upon t2, ratio of speed will be just opposite of it. Now let us start the questions. Question number 1. How many minutes does Mr. Surya take to cover a distance of 500 meters if he runs at a speed of 25 km per hour? Distance is given in meters and speed is in km per hour. Okay? So whenever we have a speed that is in km per hour, for example, 18 km per hour is the speed, and we need to convert this into meter per second. So what we'll do? Since 1 kilometer is equal to 1000 meters, so this will become 18 into 1000, and 1 hour is equal to 3600 seconds. Divide by 3600. This will be in meter per second. 18,000 divided by 3600, which is equal to 5 meter per second. So 18 km per hour is equal to 5 meter per second. In general, 1 km per hour if it is given, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? We'll multiply this by 5 divided by 18. और याद रखने का तरीका ये है, सिंस किलोमीटर ऊपर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 आएगा और आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे 3600 सेकंड्स आएंगे. सो डेफिनेटली 5 का मल्टीपल विल बी इन द डिनोमिनेटर. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 meter per second. And if we've been given 1 meter per second, we'll be dividing by 1000 to convert it into kilometer. So that is why 18 by 5 kilometer per hour. Okay. So the question was that how many minutes does Mr. Surya take to cover a distance of 500 meters if he runs at a speed of 25 km per hour? So 500 is the distance in meters. Time will be equal to distance upon speed. So 500 meters divided by speed is 25 in kilometer per hour. अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो विल मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन, ठीक है, 5 by 18. So this will become 500 into 18 by 125, which is 18 for the 72 seconds. 72 seconds will be our answer. Option C. हालांकि यहाँ पे मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है, सेकेंड्स होना चाहिए था. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन. A car takes 25 minutes to travel from one point to another at an average speed of 40 km per hour. What is the approximate distance between the 2 points? So 25 minutes का टाइम लग रहा है from traveling from one point to another और average speed है 40 km per hour. तो distance will be equal to speed into time. Speed is 40, time is 25 minutes, hours में हो जाएगा 25 by 60, which is 5 by 12. ठीक है, so 2, 3, 50 by 3, which is approximately 17 kilometers. 17 and 1 by 3 है to be precise, but क्योंकि approximate पूछा है, option B will be the answer. Clear है? ठीक है. Next question. Next is 3 boys A, B and C are running with the speeds 40 meter per second, 2500 meters per minute and 144 km per hour respectively. Then we have to identify which statements are true, which are not. तो ए, बी और सी का स्पीड क्या है? स्पीड डिफरेंट दिया है तो पहले तो इनको कंपेरेबल बनाते हैं, सेम वैल्यूज में बनाते हैं.
सो ए का स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, बी का है 2500 मीटर्स पर मिनट, डिवाइड बाई 60 करेंगे तो दिस विल बिकम 2500 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड, एंड सी का है 144 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करेंगे to convert it into meter per second. 18 8s are 144. So this also becomes 40 मीटर पर सेकेंड. तो ए और सी का स्पीड तो इक्वल आ गया और बी का स्पीड 40 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 40 मीटर पर सेकेंड है. Statement 1 is A and C have the same speed which is less than the speed of B. Yes, that is true. A और C का स्पीड तो सेम है और less than the speed of B है, तो that is true. Second है speed of B is the highest, obviously that is also true. First and second both are true. Both are true. Third, speed of C is more than, no, that is false. And fourth is also false, wrong. So first and second are true. Option B will be the answer. Clear है? ठीक है. Next question. Rashmi got into a city bus at 12:50 p.m. and traveled a distance of about 27 km and reached her destination at 1:35 p.m. What is the average speed at which the bus was moving? तो बस की स्पीड क्या होगी? 12:50 पे she got into a bus and reached the destination at 1:35 p.m. which is 45 minutes. Total travel time आ गया 45 minutes which is 3/4 hours. तो 3/4 hours में she has traveled 27 km. So speed will be 27 into 4/3. 27 into 4/3 which is 9 into 4 36 km per hour. ठीक है, लिखने का इतना ऐसा कोई जरूरत नहीं था. 27 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 45 मिनट्स में, तो 9 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी इन 15 मिनट्स. 27 + 9 36 विल बी द स्पीड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोहन टेक्स 2 hours मोर देन सोहन टू वॉक 50 किलोमीटर्स. रोहन टेक्स 2 hours more than Soham to walk 50 kilometers. But if Rohan doubles his speed, then he can make it in 1 hour less than Soham. How much time does Soham require for walking 50 kilometers? ठीक है. ओके. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वी नो कि रोहन और सोहम की अगर हम बात करें, सो रोहन इज टेकिंग 2 hours more than Soham. तो लेट अस से सोहम इज टेकिंग T hours. So in that case, Rohan is taking T plus 2 hours. ओके. बट इफ रोहन अपनी स्पीड को डबल कर देता है, अब देखो कभी भी जब ऐसा होगा, व्हेन द स्पीड आर इन द रेशियो 1:2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर सेम है, स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा. टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है. ठीक है. तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, स्पीड इंटू टाइम कांस्टेंट होगा, और जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा, जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था. इजंट इट सो? ठीक है. यानी कि स्पीड अगर डबल हो गई तो टाइम हाफ हो जाएगा. टाइम हाफ हो जाएगा यानी कि T + 2 को हमें डिवाइड बाई 2 करना है. तो डिवाइड बाई 2 करने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, T को पहले 2T लिख देते हैं, तो कि डिवाइड करने में भी हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए. ठीक है. हम ही ने एज्यूम किया है T की वजह 2T एज्यूम कर लेते हैं कि सोहन को टोटल टाइम लगा है 2T, रोहन को लगा 2T + 2. तो जब स्पीड डबल हो जाएगी रोहन की सेकंड सिनारियो में, व्हेन द स्पीड इज डबल्ड, टाइम विल बी हाफ्ड. तो 2T + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि T + 1 विल बी द टाइम टेकन बाई रोहन. And question is saying that he can make it in 1 hour less than Soham. So T + 1 is effectively 1 hour less than 2T. So 2T - 1. T + 1 is equal to 2T - 1. क्लियर है. तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी 2T - T is equal to 1 + 1 यानी कि T is equal to 2. खत्म हो गया सवाल. क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच टाइम डज सोहन रिक्वायर फॉर वॉकिंग 50 किलोमीटर्स. तो 2T टाइम है, 2T is equal to 4. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर. ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इज 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ अ बस. तो कार और बस में स्पीड का क्या रेशियो है? कार की स्पीड 1/3 है बस की, तो बस की स्पीड इज 3 यूनिट्स, कार की स्पीड इज 1 यूनिट्स. और बस की स्पीड के में इंफॉर्मेशन गिवन है दैट बस कवर्स 1125 किलोमीटर्स इन 15 आवर्स. तो स्पीड ऑफ बस विल बी 1125 डिवाइड बाई 15. 15 7s are 105 और फिर बचा 75 स्पीड आ गई बस की, और 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 75, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर विल बी स्पीड ऑफ कार. बट क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछा है. क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मच डिस्टेंस विल द कार रिकवर इन 30 मिनट्स. तो हाफ एन आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 25 × 1/2 12.5 किलोमीटर्स. ऑप्शन बी. ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. It took Ramya 15 minutes more than the usual time to travel the distance from her home to office today.
If her speed today was 2/3 of the usual speed, what is the usual time it takes for her to travel the same distance? तो स्पीड का रेशियो क्या है? यूजुअली उसकी स्पीड इज 3 यूनिट्स, बट टुडे द स्पीड इज 2 यूनिट्स, 2:3 का रेशियो है स्पीड का, ठीक है। यूजुअल स्पीड इज 3 यूनिट्स और टुडे का स्पीड इज 2 यूनिट्स। तो अगर स्पीड का रेशियो है 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2, यानी कि टाइम टेकन टुडे वुड हैव बीन 3 यूनिट्स। ओके, और क्वेश्चन इज सेइंग 15 मिनट्स ज्यादा टाइम लगा है, यानी कि जो डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट्स आज टाइम लगा है, रेगुलरली टाइम लगता था उसको 2 यूनिट्स का, डिफरेंस इज 1 यूनिट एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हर? तो यूजुअल टाइम वाज 2 यूनिट्स, यानी कि 30 मिनट्स का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, by walking at 3/4 of usual speed, a lady reaches her office 30 minutes later than her usual time. Find the usual time taken. Again, स्पीड है 3, आज है, अगर रेगुलर 4 स्पीड था तो आज की स्पीड 3 यूनिट्स है, 3:4 का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा 4:3 का, और डिफरेंस गिवन है 1 यूनिट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है। और यूजुअल स्पीड थी 4 यूनिट्स, तो यूजुअल टाइम था 3 यूनिट्स, यानी कि 90 मिनट्स का। अगर आज का टाइम पूछते तो 120 मिनट्स होता। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड. If his speed was 25% more, he would take 14 minutes less to cover the same distance. So if speed was instead, राहुल का स्पीड 25% ज़्यादा होता, 25% इज 1/4 ज़्यादा होता, यानी कि अगर यूजुअल स्पीड 4 है, तो अगर राहुल का स्पीड 4 से 5 होता है, ठीक है, दिस इज यूजुअल स्पीड, एंड इफ द स्पीड वॉज इंस्टेड 5 यूनिट्स, 4:5 अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो 5:4, 14 मिनट्स कम लगते, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 मिनट्स, विच इंप्लाइज कि यूजुअल टाइम कितना होगा? 5 यूनिट्स का, 70 मिनट्स का। देन क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द टाइम ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस इफ हिज स्पीड इज 40% मोर देन द सर्टेन स्पीड। तो अगर यूजुअल स्पीड से 40% ज्यादा हो, 40% इज 2/5, 2/5 ज्यादा हो, तो इफ हिज स्पीड वॉज, यूजुअल स्पीड वॉज 5 यूनिट्स, तो आज की स्पीड क्या होनी चाहिए? 7 यूनिट्स। तो अगर 5:7 का रेशियो हो स्पीड में, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5 का। तो यूजुअल टाइम वॉज इक्वल टू 7 यूनिट्स, और यूजुअल टाइम अब हमको पता है दैट इज 70 मिनट्स, विच इज 7 × 10 मिनट्स। तो आज का टाइम विल बी 5 × 10, 50 मिनट्स। ऑप्शन बी क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is X and Y are running towards each other from their houses. X can reach Y's house in 25 minutes, which is half the time taken by Y to run from his house to X's house. अब X और Y के हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो X के लिए और Y के लिए सेम ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि X के लिए डिस्टेंस अलग होगा, Y के लिए डिस्टेंस अलग होगा, तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है। टाइम टेकन बाई X टू रीच Y's हाउस इज 25 मिनट्स, and that is half the time taken by Y, तो Y को लग रहा होगा 50 मिनट्स to reach X's house, same distance travel कर रहे हैं दोनों। If the two start to run towards each other at the same time, then how much more time it will be required by Y to reach the middle of the houses? ठीक है, middle of the houses पहुंचना है, तो X को टाइम टेकन विल बी 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि 12.5 मिनट्स, और टाइम टेकन बाई Y विल बी 25 मिनट्स, 50/2, so Y is taking 12.5 minutes more, so answer will be 12.5, ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ 3 cars आर इन द रेशियो 5:4:6, द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाई देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज व्हाट? तो स्पीड्स हमें गिवन है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, एंड वी नो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 5:4:6, तो टाइम का रेशियो विल बी 1/5:1/4:1/6, ठीक है। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको
हटाना पड़ेगा हमें, तो 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा 5 4 और 6 का, 4 और 6 का एलसीएम इज 12, 12 5 जा 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम 12 is to 15 is to 10. So our answer will be 12 is to 15 is to 10. Option D. क्लियर? इसी बात को ऐसे भी समझ सकते थे, सेम चीज़ है, बट समझने का तरीका ये भी हो सकता था कि स्पीड का रेशियो है 5 is to 4 is to 6. Let us assume a distance that is LCM of 5 4 and 6 or multiple of 5 4 and 6. That distance will be 60. अब टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्पीड 5 है, 60 by 5 will be 12 hours. सेकेंड है 4, 60 by 4 will be 15 hours. एंड 60 by 6 will be 10 hours. तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 12 is to 15 is to 10. क्लियर है? एक ही बात है, बस समझने का तरीका है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्ड फॉर अ टोटल 16 hours. The first half of the distance he traveled at 35 km per hour and the second half at 45 km per hour. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? ओके, टोटल टाइम गिवन है हमें 16 आवर्स का है, और फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि दोनों केसेस में क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, इजंट इट सो? तो फर्स्ट हाफ जो ट्रैवल किया दैट हैज बीन ट्रैवल्ड एट 35 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड हाफ ट्रैवल किया 45 किलोमीटर पर आवर से। तो स्पीड का रेशियो कितना है? पहले केस में स्पीड 35 और सेकंड केस में स्पीड 45, यानी कि स्पीड का रेशियो है 7:9 का। क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है तो टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 9:7 हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा, इजंट इट सो? ठीक है, तो स्पीड का रेशियो है 7:9 का, टाइम का रेशियो आ जाएगा 9:7 का, और 9 + 7 कितना है 16 यूनिट्स, और ये 16 यूनिट्स बराबर है 16 आवर्स के, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा, खत्म हो गया सवाल। हमें पता है कि 45 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है 7 आवर्स के लिए, और उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया 35 की स्पीड से 9 आवर्स के लिए। तो कोई भी एक डिस्टेंस को डबल कर दो, तो 2 इंटू 45 इंटू 7, so 90 into 7, this becomes 630 kilometers. Is that clear? Option C will be the answer. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज a car left X for Y and traveled at an average speed of 60 km per hour. It reached Y 2 hours after the scheduled time. Okay. So Y से एक कार ट्रेवल कर रही है, ओके, ठीक है, और ट्रेवल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड, ट्रेवल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट रीच्ड बाय 2 hours आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम। अब इसको जो शेड्यूल्ड टाइम था, लेटेस्ट टी टाइम था, तो टी + 2 hours लगे पहुंचने में। इफ इट हैड लेफ्ट एक्स फॉर वाई एंड ट्रेवल्ड एट एवरेज स्पीड ऑफ 80, तो टाइम लगता 2 hours बिफोर पहुंचती। अगर 80 की स्पीड से ट्रैवल करती है तो उस केस में 60 की स्पीड से लगे हैं टी + 2, 80 की स्पीड से लगते टी -2, 2 hours बिफोर द शेड्यूल टाइम। क्वेश्चन इज आस्किंग एट व्हाट एवरेज स्पीड मस्ट इट ट्रैवल इन ऑर्डर टू रीच वाई एट द शेड्यूल्ड टाइम। शेड्यूल्ड टाइम पे अगर पहुंचना है तो कितना एवरेज स्पीड होना चाहिए, इजंट इट सो? एक चीज तो क्लियर है कि 60 और 80 के बीच में होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि 60 की स्पीड से लग रहा है टी + 2 टाइम, 80 की स्पीड से लग रहा है टी -2 टाइम, इजंट इट सो? ठीक है, तो वी नो कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 60 इंटू टी + 2 एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 80 इंटू टी -2, so that is 60t plus 120 which is equal to 80t minus 160. तो 20t will be equal to 160 plus 120, तो t will be equal to 280 by 20 यानी कि 14, t is equal to 14 आ गया हमारा, ठीक है, t is equal to 14 आ गया। So now we can find out the speed. तो speed, required speed will be equal to total distance कितना है, distance will be 60 into t + 2 यानी 60 into 16 divide by time which is 14, so 8 7 480 by 7 will be the speed in kilometer per hour. Is that clear? Option हमारा आ जाएगा C as the answer. Is it clear? ठीक है, 480 by 7 will be the speed. ये तो हो गया इस सवाल को करने का, इस क्वेश्चन को करने का एक कन्वेंशनल तरीका। अब इस क्वेश्चन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम
ठीक है, देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन इज सेइंग दैट फर्स्ट केस में जब स्पीड 60 है, टाइम टेकन इज t+2, व्हेन द स्पीड इज 80, टाइम टेकन इज t-2। ओके, और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या स्पीड होगी व्हेन टाइम टेकन इज इक्वल टू t, व्हेन टाइम टेकन इज इक्वल टू t, एंड वी नो डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम। और ये टाइम की वैल्यूज क्या हमारी एपी में नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, t+2 t-2 इजंट इट सो, तो दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम है तो 1 बाई टाइम टाइम एपी में है और स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम, यानी कि स्पीड हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, व्हेन ए बी एंड सी आर इन एपी, 1 by A, 1 by B, 1 by C, these are in HP। तो यहाँ पे स्पीड हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी, और अगर स्पीड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है यानी कि जो वैल्यू हमें निकालनी है स्पीड की, दैट इज द मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू हमारी क्या होगी, दैट विल बी हार्मोनिक मीन, दैट विल बी हार्मोनिक मीन, isn't it so? So that will be equal to 2AB, यानी कि 2 into 60 into 80 divided by 60 plus 80। So 2 into 60 into 80 divided by 140। 0 से 0 गया आंसर, तो अपना 480/7 है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो जब भी हमारे टाइम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे तो स्पीड्स विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इजंट इट सो? इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन तो मेक श्योर, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT, and you can also join the Telegram group that is CAT-ZAT-MBA. Okay. Now coming to the average speed. Okay. Now let us say average speed का definition is, by definition average speed is equal to total distance traveled divided by total time, TD by TT, total distance by total time. Now there can be multiple cases. एक तो जनरल सिनेरियो है, म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक सिनेरियो तो जनरल है कि डिस्टेंसेस अलग अलग दी होंगी, टाइम अलग अलग गिवन होंगे, स्पीड अलग अलग गिवन होंगी, तो उससे टाइम निकाल के अल्टीमेटली हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बट एक केस हो सकता है व्हेन द टाइम्स आर सेम, टाइम इज सेम। अगर टाइम सेम है हमारा, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा बेसिकली, अगर टाइम हमारा सेम है तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, अगर टाइम लेटर से t है और स्पीड्स हैं s1 और s2, तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस आ जाएगी s1t, सेकेंड केस में आ जाएगी s2t, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाई टाइम, तो दोनों केस में t ही लग रहा है। So average speed will be equal to s1 plus s2 by 2, which is arithmetic mean, arithmetic mean, isn't it so? Arithmetic mean of the values। तो जब भी टाइम सेम होगा तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ स्पीड, एवरेज ऑफ स्पीड्स, isn't it so? क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ तब होगा तब जबकि हमारा टाइम सेम हो, दोनों केसेस में, बिकॉज व्हेन द टाइम इज सेम तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड्स, isn't it so? ठीक है, सेकेंड सिनेरियो हो सकता है व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम है यानी टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। लेट अस से डिस्टेंस इज इक्वल टू d, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस डी, और फर्स्ट स्पीड अगर s1 है तो टाइम विल बी d बाई s1 प्लस d बाई s2।
So this becomes 2d upon d कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 1/s1 plus 1/s2. This will become 2 upon 1/s1 plus 1/s2, which simplified will be 2 times s1 s2 upon s1 plus s2, which is harmonic mean of the speeds. तो अगर टाइम सेम है तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स विल बी एवरेज, और अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में हार्मोनिक मीन लेना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? और यही सेम चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में. ठीक है, कि हमारा जब भी डिस्टेंस सेम होगी तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है दैट विल बी हार्मोनिक मीन. इजंट इट सो? क्लियर? बिकॉज टाइम के केस में क्या हो रहा होगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर पहले केस में टाइम हमारा लग रहा है t1 और सेकंड केस में टाइम लग रहा है t2, तो ऐसा जो मिडिल वैल्यू ले रहे हैं वो क्या है? ऐसा मिडिल वैल्यू क्या है? t1 प्लस t2 ही तो टोटल टाइम है 2d डिस्टेंस के लिए. ये डिस्टेंस ट्रैवल किया d, यहाँ पे d ट्रैवल किया, तो इफेक्टिवली d डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लग रहा है? t1 प्लस t2/2. अगर 2d डिस्टेंस में t1 प्लस t2 टाइम लग रहा है तो d डिस्टेंस में टाइम लग रहा है t1 प्लस t2/2. इजंट इट सो? तो बेसिकली सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टाइम्स हमारे AP में है. अगर टाइम AP में है तो फिर स्पीड क्या होगी? HP में होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी. टाइम तो AP में है सेम डिस्टेंस के लिए, तो स्पीड विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अगर पहली स्पीड s1 है, सेकंड स्पीड s2 है, तो बीच की स्पीड हो जाएगी 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2. तो यही तो एवरेज स्पीड है. क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं अब. First question is, a car covered a certain distance at a speed of 60 and returned at the speed of 90 km/h. We have to find the average speed of the journey. तो average speed हो जाएगा हमारा S average will be equal to 2 times 60 into 90 divide by 60 plus 90. So आंसर आ जाएगा 2 into 60 into 90 divide by 150. 30 से 3 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 72 will be the answer. ठीक है, बट ऐसे हम फॉर्मुला अप्लाई करके नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर्मुला सिर्फ तब अप्लाई होगा जबकि डिस्टेंस सेम हो, बट डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं होगी. तो ऐसे केसेस में कभी भी हम क्या करेंगे, विल एज्यूम अ डिस्टेंस विच इज एलसीएम ऑफ 60 एंड 90. ठीक है, फॉर्मुला भी याद रखना है, सिंपल केसेस में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट एज्यूम करेंगे डिस्टेंस. लेट अस से इस केस में एज्यूम करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर्स. 180 इज एलसीएम ऑफ 60 एंड 90. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा भाई? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस विल बी 360, 180 प्लस 180, और टोटल टाइम क्या होगा? 180/60 विल बी 3 आवर्स और 180/90 विल बी 2 आवर्स. तो 360 डिवाइड बाई 5 यानी कि 72 km/h. इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरुण ट्रेवल्ड फॉर 4 hours at 60 km/h and then for 6 hours at 40 km/h. We have to find his average speed for the journey. Okay, so एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले केस में भी 240 है, दूसरे केस में भी 240. टोटल डिस्टेंस इज 480 और टोटल टाइम इज 10. 48 इज द स्पीड. ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन गोज फ्रॉम x to y on a cycle at 20 km/h and returns at 24 km/h. The method of central tendency most appropriate to calculate the average speed would be what? x से y जा रहा है and then he is returning from y to x. तो सेम डिस्टेंस इज गेटिंग ट्रेवल्ड, सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है x से y और y से x. तो अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या लेंगे हम? हार्मोनिक मीन लेंगे. इजंट इट सो? स्पीड क्या होगी हमारी? 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हार्मोनिक मीन होगी. और वही क्वेश्चन पूछ रहा है तो हार्मोनिक मीन ही हमारा आंसर होगा. ऑप्शन बी. क्लियर? अगर टाइम सेम होता तो अरिथमेटिक मीन होता है. ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर टाइम सेम गिवन होता तो अरिथमेटिक मीन होता. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A car travels certain distance AB at 60 km/h and another distance BC equal to thrice the distance AB at 90 km/h. We have to find its average speed. अब इस केस में डिस्टेंस सेम नहीं है. पहले एक डिस्टेंस AB ट्रैवल करता है और बाद में एक डिस्टेंस BC ट्रैवल करता है विच इज 3 टाइम्स AB. BC इज 3 टाइम्स AB. तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो कितना है? 1:3 का है. AB और BC का रेशियो 1:3 का है.
सेम प्रोसेस करते हैं हम, एक डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी वो हम एज्यूम करते हैं ए बी, और 60 और 90 जो स्पीड्स हैं उनका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एज्यूम करते हैं। तो लेट अस से ए बी इज इक्वल टू 180 किलोमीटर्स, उसके से बी सी विल बी 3 टाइम्स यानी कि 540 किलोमीटर्स। सो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना है 180 प्लस 540, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 720 किलोमीटर्स। टाइम कितना लगेगा, 180 की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 60 की स्पीड से, और 540 की कर रहा है 90 की स्पीड से। तो 180 बाई 60 दैट विल बी 3 आवर्स, 540 बाई 90 दैट विल बी 6 आवर्स, 720 बाई 9, सो आंसर विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कवर्स 12 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर, 36 kilometer at 9 kilometer per hour, and then 32 kilometer at 4 kilometer per hour. We have to find the approximate average speed in covering the whole distance. तो total distance upon total time, that will be the average speed. Total distance कितना है 12 plus 36 plus 32, and total time is equal to, पहले केस में 12 by 6 2 hours, सेकेंड केस में 36 by 9 4 hours, और थर्ड केस में 8 hours. So this is 36 plus 32 68 plus 12 80 डिवाइड बाई 2 plus 4 6 plus 8 14, तो 14 5 are 70, और फिर 10 by 14 यानी कि 5.71 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। ऑप्शन सी, ओके, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू रिलेटिव स्पीड पार्ट। नाउ इफ टू पर्सन्स, दो लोग हैं, ठीक है, इफ दे आर ट्रैवलिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और स्पीड ऑफ वन इज s1, स्पीड ऑफ द अदर इज s2। इन दैट केस अगर हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल देखना है इन 1 आवर, लेट अस सपोज, तो 1 आवर में दिस पर्सन विल ट्रैवल डिस्टेंस s1 एंड दिस पर्सन विल ट्रैवल डिस्टेंस s2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने से कम हो गया, s1 प्लस s2 से कम हुआ। तो रिलेटिव स्पीड वी कैन से दैट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने से कम हो रहा है, s1 प्लस s2 से कम हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2 व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, इज दैट सो, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते, बट लेट अस से उल्टा जा रहे होते अलग अलग डायरेक्शन में, तब इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है s1 प्लस s2 से। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है s1 प्लस s2 से, और सेकंड वाले केस में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा s1 प्लस s2 से। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली पहले वाले केस में भी क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तरफ आएंगे तरफ आएंगे, और एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, और मिलने के बाद फिर डिस्टेंस इंक्रीज करने लगेगा। तो पहले डिस्टेंस जीरो होगा, जीरो की तरफ जाएगा और फिर इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर, मीटिंग पॉइंट के बाद में डिस्टेंस जो है इनका वो इंक्रीज करेगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, स्पीड s1 और s2 ही है, तो जो बंदा पीछे जा रहा है उसका स्पीड शुड बी ग्रेटर देन s1, शुड बी ग्रेटर देन s2। अगर पीछे वाले को आगे वाले को कैच करना है, भाई पकड़ तभी पाएगी जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, चोर पुलिस का खेल होगा या कोई भी और क्वेश्चन होगा, तो पीछे वाले का स्पीड शुड बी ग्रेटर देन s1, शुड बी ग्रेटर देन s2, और रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी s1 माइनस s2, दैट विल बी s1 माइनस s2। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर s2 ग्रेटर देन s1 है, उस केस में रिलेटिव स्पीड विल बी s2 माइनस s1, ठीक है। या फिर s1 माइनस s2 करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, बिकॉज s2 इज ग्रेटर, तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड हमारा s2 माइनस s1 होगा जब s2 ग्रेटर देन s1 है, और फिर उस केस में जो पीछे वाला बंदा है वो आगे वाले को कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, बिकॉज उसकी स्पीड इज लेसर देन स्पीड ऑफ द पर्सन हु इज अहेड, ठीक है। क्लियर है, ओके। नाउ इसी पे बेस्ड, रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि हमसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता है, पॉइंट ऑफ मीटिंग पूछता है, जहाँ पे कि मिलते हैं, ठीक है। सो एक बात समझना ज़रूरी है, बिकॉज जब भी मीटिंग की बात होगा, लेट अस से देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दो कार्स हैं लेट अस सपोज, ठीक है, और एक पॉइंट पे जाके दे विल बी मीटिंग,
एंड इफ बोथ द कार्स हैव स्टार्टेड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, तो मीटिंग टाइम कितना होगा? दोनों को सेम टाइम ही लगा होगा, सेम टाइम में जो भी डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया होगा अलग स्पीड से। पहले की स्पीड अगर ए है, दूसरे की स्पीड बी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल, दिस डिस्टेंस विल बी टी इंटू ए एंड दिस डिस्टेंस विल बी टी इंटू बी, इजंट इट सो? बट ऐसा भी हो सकता है दोनों को डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट करवाया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि पहला वाला जो कार है दैट स्टार्टेड एट 8 AM विद स्पीड ए एंड सेकेंड स्टार्टेड एट 9 AM विद स्पीड बी, और क्वेश्चन पूछे कि कितने टाइम के बाद में ये मिलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एनी जनरल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू डी। तो अगर 8 AM पे पहली कार स्टार्ट हुई है और सेकंड कार स्टार्ट हुआ है 9 AM पे, तो सबसे पहला काम हम ऐसे क्वेश्चन में ये करेंगे कि दोनों कार्स का जो टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, वो सेम करेंगे। तो 8 AM से 9 AM तक दिस विल ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू ए एट 9 AM दिस विल बी एट दिस पोजिशन, ठीक है। 9 AM पे इस पोजिशन पे होगी। अब कहानी बिल्कुल सेम हो गई है। 9 AM पे ये डिस्टेंस कितना है? दिस विल बी डी माइनस ए का टोटल डिस्टेंस दी था, तो दिस विल बी डी माइनस ए। अब दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, सेम टाइम पे। अब दोनों कार्स 9 AM पे स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। तो डी माइनस ए डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी और रेट स्पीड होगा ए प्लस बी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टाइम टेकन विल बी डी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी आवर्स। और क्योंकि 9 AM के बाद में देख रहे हैं, तो 9 AM में ये टाइम ऐड करेंगे तो हमें एक्चुअल टाइम पता लगेगा, मीटिंग टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरुण एंड वरुण स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स। अरुण और वरुण एक्स से, अरुण जा रहा है एक्स से वाई की तरफ और वरुण जा रहा है वाई से एक्स की तरफ, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड टाइम टेकन बाई अरुण और वरुण टू कवर द डिस्टेंस एक्स वाई इज 30 and 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो स्पीड तो नहीं दी हमें, टाइम गिवन है, और टाइम कितना गिवन है? अरुण को टाइम लग रहा है 30 मिनट्स का और वरुण को टाइम लग रहा है 45 मिनट्स का। तो टाइम का रेशियो कितना है? 2:3 का। भाई टाइम अगर 30 और 45 लग रहा है तो टाइम का रेशियो कितना है? 2:3 का। यानी कि स्पीड का रेशियो ठीक है इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहे हैं। स्पीड का रेशियो होगा 3:2 का। क्लियर है? ठीक है। और जब मीटिंग होगी इनकी, यानी कि जब ये बीच में जहां पे भी इनकी मुलाकात होगी, तो थिंक अबाउट इट, दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल किए होंगे, दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल किए होंगे, इजंट इट सो? तो जब मीटिंग होगा तो टाइम इज सेम, और अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड का रेशियो है 3:2 का, अरुण और वरुण का। यानी कि अरुण ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, और वरुण की डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी इक्वल टू 2 यूनिट्स। और टोटल डिस्टेंस अगर 5 यूनिट्स है तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस अरुण ने ट्रैवल किया होगा, या इफेक्टिवली ऐसे समझ लो, टोटल डिस्टेंस अगर हमारा डिवाइड बाय 5 कर दें तो 3/5 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा अरुण ने, और 2/5 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वरुण ने, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम पता है। इज दैट सो? 3/5 डिस्टेंस अरुण ने ट्रैवल किया होगा, कितना टाइम लगेगा? 30 × 3/5 विच इज इक्वल टू 18 मिनट्स। या फिर हम निकाल लेते कि वरुण ने 2/5 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो 2/5 × 45, साइन टाइम सेम ही आएगा, 18 मिनट्स। इज दैट क्लियर? तो 18 मिनट्स के बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा सा सिंपल सा सवाल, क्लियर होता है? ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ भी वैल्यू तो गिवन नहीं थी हमें। क्लियर है? ओके। और बाकी किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा तो आप देखो, हमें ये चीज़ तो समझ में आती है कि टाइम का रेशियो है 2:3 का, स्पीड का रेशियो है 3:2 का। अब स्पीड मान भी सकते हो 30 और 20 मान लो, स्पीड 30 और 20 मान लो, ठीक है। तो अगर स्पीड 30 और 20 मान लेते हो तो हमें डिस्टेंस पता चल जाती है, कितनी डिस्टेंस हो गई? 15 किलोमीटर्स, डिस्टेंस हो गई 15 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर हमने लेटेस्ट से स्पीड मान ली 30 और 20, वैसे तो ऐसे ही करना है, बट अगर मान लो स्पीड हमने मान ली 30 और 20, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर्स। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 30 + 20, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 15/50 विच इज 3/10 आवर्स, यानी 18 मिनट्स। ओके, सो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sisters नेहा एंड मोनिका वॉक टू स्कूल फ्रॉम द हाउस। नेहा टेक्स 40 मिनट्स वाइल मोनिका टेक्स 30 मिनट्स। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं,
ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो नेहा को टाइम लग रहा है 40 मिनट्स का और मोनिका को टाइम लग रहा है 30 मिनट्स का। तो टाइम का रेशियो इज 40:30 यानी 4:3। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, ठीक ऑपोजिट, 3:4 का रेशियो होगा स्पीड का। वन डे नेहा स्टार्टेड 5 मिनट्स अर्लियर देन मोनिका। One day Neha started 5 minutes earlier than Monica. In how many minutes would Monica overtake Neha? नेहा ने 5 मिनट पहले एक दिन स्टार्ट कर दिया ट्रैवल करना, तो कितने मिनट के बाद में मोनिका वुड ओवरटेक नेहा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। स्पीड का रेशियो में पता है 3:4 आ गया, ठीक है, क्लियर है। और अब कहानी क्या है कि वन डे नेहा स्टार्टेड 5 मिनट्स बिफोर। तो अगर नेहा ने 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया है तो थिंक अबाउट इट, पहले जब मोनिका स्टार्ट करेगी उससे पहले नेहा ऑलरेडी 5 मिनट्स ट्रैवल कर चुकी होगी। तो नेहा हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड फॉर 5 मिनट्स, इजंट इट सो? इसके बाद में मोनिका स्टार्ट करेगी। नाउ लेट अस से आफ्टर टी मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग मोनिका ओवरटेक्स नेहा, यानी कि टी मिनट्स के बाद में, ठीक है, 5 मिनट्स के बाद में टी मिनट्स और चलेगी नेहा, और मोनिका तो स्टार्ट ही करेगी तो टी मिनट्स ट्रैवल करेगी, इजंट इट सो? ठीक है, तो स्पीड का रेशियो 3:4, हम मान लेते हैं स्पीड उनकी 3 और 4 ही है, 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स ही है। तो नेहा ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम होगा दोनों का, नेहा का और मोनिका का, तभी तो मिलेंगे, तभी तो ओवरटेक होगा उसके बाद, ठीक है। तो नेहा ने कितना टाइम ट्रैवल किया? ट्रैवल टाइम कितना है नेहा का? 5 मिनट्स पहले चली है और टी मिनट्स फिर साथ में चली है, जितना टाइम मोनिका भी चली है। तो नेहा का ट्रैवल टाइम इज 5 + t एंड स्पीड इज 3, स्पीड है 3, तो नेहा का डिस्टेंस आ जाएगा 3 × 5 + t और मोनिका का डिस्टेंस विल बी 4 × t, और दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। तो 15 + 3t इज इक्वल टू 4t, और यहां से वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू 15 मिनट्स। यानी कि मोनिका के स्टार्ट करने के 15 मिनट के बाद में मोनिका विल ओवरटेक नेहा। क्वेश्चन में एज सच ये मेंशन नहीं है कि कहां से हमें टाइम कैलकुलेट करना है, बट इस केस में क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा इन हाउ मेनी मिनट्स वुड मोनिका ओवरटेक नेहा, यानी कि मोनिका के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है, तो मोनिका स्टार्ट करने के 15 मिनट्स के बाद में ओवरटेक करेगी। बट कोई क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन में लास्ट लाइन ये भी हो सकता था कि नेहा के स्टार्ट करने के कितना टाइम बाद में ओवरटेक करेगी, ठीक है। नेहा का स्टार्ट करने का टाइम गिवन होता है कि नेहा स्टार्टेड एट 8 AM या 7:55 AM। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो t इज इक्वल 15 मिनट्स आया है हमारा, ये मोनिका के स्टार्ट करने के 15 मिनट के बाद वाली कहानी है, ठीक है। नेहा के स्टार्ट करने के 20 मिनट के बाद में ओवरटेक करेगी मोनिका। इस क्वेश्चन का आंसर विल बी ऑप्शन बी, बट किसी और क्वेश्चन में ऑप्शन सी भी आंसर हो सकता था अगर लैंग्वेज डिफरेंट होती तो। इज दैट क्लियर? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि नेहा ऑलरेडी 5 मिनट ट्रैवल कर चुकी है मोनिका के स्टार्ट करने से पहले, तो नेहा हैज ऑलरेडी ट्रैवल्ड हाउ मच डिस्टेंस? 3 यूनिट्स उसकी स्पीड है, और 5 मिनट्स ट्रैवल किया, 3 × 5 यानी 15 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय नेहा 15 यूनिट्स, तो यही ऑलरेडी नेहा और मोनिका के बीच का गैप आ जाएगा, यानी कि जब मोनिका स्टार्ट करेगी तो नेहा इज ऑलरेडी 15 यूनिट्स अहेड, इज दैट सो? और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। नेहा की स्पीड 3 यूनिट्स है, मोनिका की स्पीड 4 यूनिट्स है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1 यूनिट। और डिस्टेंस कितना कवर करना है मोनिका को? 15 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम टेकन विल बी 15 डिवाइडेड बाई 1 एंड हेंस दैट इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ओके, फॉर द सिंप्लिसिटी सेक यू कैन एज्यूम कि स्पीड जो उनकी है वो है 3 km/h और 4 km/h, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रॉपरली आ जाएं और हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है इस क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट आए या कोई बात समझ में नहीं आए तो मेक श्योर टू कमेंट, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि ये बात समझ में नहीं आई या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। हम रेशियो में ही सारी चीज़ों को इसलिए कर रहे हैं सो दैट क्वेश्चन को हम सिंपल से सिंपल बना के रखें, कम से कम कैलकुलेशन करें, ज़्यादा अननोन ना माने, अननेसेसरली अपना टाइम ना एक्सटेंड करें, क्योंकि जितना तुम इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा, और फिर कोशिश करो कम से कम लिखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे तो समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इतना कुछ, बट तुमको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जितना तुम मेंटली चीज़ों के कैलकुलेशन को करोगे उतना ही तुम्हारा क्वेश्चन फास्ट होगा और एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन वी नो कि नेहा और मोनिका का जो टाइम का रेशियो है दैट इज 4:3, तो स्पीड का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा 3:4, स्पीड का रेशियो 3:4 होगा। अब नेहा 5 मिनट पहले स्टार्ट करी, यानी नेहा ऑलरेडी 5 × 3 15 यूनिट्स चल चुकी है, 15 किलोमीटर चल चुकी है, समझ लो, ठीक है, 15 किलोमीटर जा चुकी है।
अब मोनिका जब चलना स्टार्ट करेगी, मोनिका की स्पीड 4 है और नेहा की स्पीड 3 है, 4 - 3 1 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी और कवर करना है 15 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मिनट में लिखा हुआ है ना, मिनट में एक्चुअली मिनट में डिस्टेंस 40 और 30 है। ठीक है, बस ये पंगा हो जा रहा था। ठीक है, मिनट में डिस्टेंस है 40 और 30। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे स्पीड अगर हमने लिया है 3 और 4 यूनिट्स, ठीक है, और 5 मिनट्स ट्रैवल किया है। ठीक है, ये 3 और 4 हम मान लेते हैं, लेट अस से 3 किलोमीटर पर मिनट, बिकॉज मिनट्स में ही कहानी है, 5 मिनट ट्रैवल किया है। ठीक है, तो डिवाइड का चक्कर नहीं रखते हैं, मिनट्स वाली कहानी है। तो 3 किलोमीटर पर मिनट अगर स्पीड है या 3 मीटर पर मिनट है, कैसे भी मान लो तुम, कोई वैल्यू मान लो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट लिखते ही हम कन्फ्यूजन हमें आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि मीटर मानेंगे किलोमीटर मानेंगे, अदरवाइज क्या है, 3 मीटर पर मिनट है मान लो और 4 मीटर पर मिनट है स्पीड। तो 5 मिनट्स में नेहा ने ट्रैवल किया होगा 15 मीटर्स, और फिर जब मोनिका ट्रैवल करेगी तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर मिनट, तो टाइम लगेगा 15/1 यानी कि 15 मिनट्स का। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स P and Q are 270 किलोमीटर अपार्ट। At 8 AM buses A and B leave P and Q for Q and P respectively। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है? 270 किलोमीटर्स। At 8 AM both buses A and B leave from P and Q। तो A लीव करती है P से और B लीव करती है Q से। एग्जैक्टली एट 8 AM, दोनों सेम टाइम पे लीव कर रही हैं। तो क्वेश्चन आसान है, सेम टाइम पे लीव कर रही है तो कुछ भी हमें सेम टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम टाइम है। इफ द स्पीड्स ऑफ A and B आर 40 and 50, तो A की स्पीड 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर, B की है 50। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 40 + 50 हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रैवल करना है 270, तो टाइम टेकन विल बी 270 डिवाइड बाई 90 यानी कि 3 आवर्स का। 8 + 3 11 AM पे बसेस विल क्रॉस ईच अदर, बसेस विल क्रॉस ईच अदर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस A departs from Lucknow to Ayodhya at 8 AM while bus B departs Ayodhya for Lucknow at 9 AM। अब इस बार टाइम डिफरेंट है। If the distance between Lucknow and Ayodhya is 180 kilometers and speed of A and B are 30 and 20 km per hour respectively, when will the buses cross each other? Now bus A is leaving from Lucknow for Ayodhya and bus B is leaving from Ayodhya, बट बस ए स्टार्ट कर रही है 8 AM पे और बस बी स्टार्ट कर रही है 9 AM पे। तो सबसे पहले हम बस ए को क्या है 8 AM से 9 AM तक तो चला देंगे, और बस ए की स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ बस ए इज 30, दिस स्पीड इज 30, दिस स्पीड इज 20। तो इन 1 आवर दिस विल ट्रेवल 30 किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस है 180, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 150 किलोमीटर्स। नाउ एट 9 AM बस ए विल बी हेयर, बस ए की स्पीड 30 है, बी की 20 है, तो रेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 30 + 20, तो टाइम टेकन विल बी 150 डिवाइडेड बाई 30 + 20, 150/50 यानी कि 3 आवर्स। बट ये 3 आवर्स कब से होगा? 9 AM + 3 आवर्स होगा, 9 + 3 यानी कि 12 PM पे बोथ द बसेस विल क्रॉस ईच अदर या मीट ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus leaves at 5 AM from Bangalore and reaches Hyderabad at 12 noon. Another bus leaves Hyderabad at 8 AM and reaches Bangalore at 3 PM. At what time do the buses meet? तो ट्रैवल टाइम कितना है बस 1 का? बस 1 5 AM से 12 noon, 12 PM, टाइम टेकन इज 7 आवर्स। बस 2 के लिए 8 AM से 3 PM, 4 + 3, ये भी 7 आवर्स ही ले रही है। ट्रैवल टाइम दोनों बसेस का सेम है, फर्क ये है दोनों बसेस डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट कर रही हैं, चल तो अपोजिट डायरेक्शन में रही है, एक जा रही है बेंगलोर से हैदराबाद, दूसरी जा रही है हैदराबाद से बेंगलोर। तो फर्स्ट बस हैज स्टार्टेड एट 5 AM, 5 AM पे स्टार्ट किया फ्रॉम बेंगलोर, ठीक है, और 8 AM पे लेट अस से दिस इज द डिस्टेंस दैट हैज ट्रैवल्ड, और 8 AM पे दूसरी बस स्टार्ट करती है फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद से स्टार्ट करती है। तो अगर टोटल 7 आवर्स का ट्रैवल टाइम लग रहा है, टोटल 7 आवर्स में ट्रैवल कर रही है, तो ऑलरेडी 3 आवर्स की डिस्टेंस तो ट्रैवल कर चुकी है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4 आवर्स का डिस्टेंस, इजंट इट सो? ठीक है, 4 आवर्स का डिस्टेंस है,
तो इफ द स्पीड ऑफ बोथ द बसेस, क्योंकि सेम टाइम लग रहा है, तो अगर दोनों बसेस की स्पीड अगर s है, स्पीड इज इक्वल टू s, तो डिस्टेंस रिमेनिंग विल बी 4s, 3s डिस्टेंस इज ऑलरेडी बीन ट्रेवल्ड, और पहली बस की स्पीड भी s है, दूसरी बस की स्पीड भी s है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड एडअप हो जाएगी, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 4s डिवाइड बाई 2s विच इज इक्वल टू 2 hours. टाइम टेकन विल बी 2 hours. तो 8 AM प्लस 2 hours यानी कि 10 AM पे बोथ द बसेस विल मीट ईच अदर. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन. कार वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 80 km per hour while bus was driving towards east at speed of 60 km per hour. This is north, this is south, this is east, and this is west. So a car is driving towards north at a speed of 80 and bus is driving towards east at a speed of 60. If they both crossed each other at 10 AM, what would be the distance between them at 11:30? यानी कि 10 AM पे दोनों एक पॉइंट पे थे, 10 AM पे, ठीक है, 10 AM पे both were at the same point, और 10 AM के बाद में car is driving towards north at a speed of 80 and bus is driving towards east at a speed of 60. और क्वेश्चन पूछ रहा है 11:30 AM पे उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 11:30 AM यानी कि 1.5 आवर, भाई 10 AM के बाद 1.5 आवर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 1.5 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार विल बी 80 इंटू 1.5 यानी कि 120 किलोमीटर. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ये कार की डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और बस की डिस्टेंस हो जाएगी 60 इंटू 1.5 यानी कि 90 किलोमीटर. और क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है एक तरह से? इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना आएगा? दिस विल बी द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, इजंट इट सो? तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसका कि एक साइड हमें दिया है 120 और अदर साइड इज 90, तो साइड्स का रेशियो क्या 3:4 नहीं आ रहा है? 3:4. तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स यानी कि 150. 30 into 3, 30 into 4, 30 into 5, that will be 150. So distance between them will be equal to 150 kilometers. Option C. Is that clear? ठीक है. Next question. अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं था, ये बात समझना है, ठीक है. तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे S1 प्लस S2 क्यों नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन इनका ऑपोजिट नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं एक दूसरे से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 guns were fired from the same place at an interval of 6 minutes. A person approaching the place observed that 5 minutes 52 seconds have elapsed between the hearing of the sound of 2 guns. If the velocity of the sound is 330 meters per second, the man was approaching that place at what speed? Okay, 2 guns को सेम प्लेस से फायर किया एट एन इंटरवल ऑफ 6 minutes. तो लेट अस से दिस इज द प्लेस जहां से कि गन्स को फायर किया है. फायरिंग इस प्लेस से हुआ है. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर पर्सन हमारा सेम पोजीशन पे रहता तो उसको फायरिंग का जो बीच का टाइम है, हियरिंग ऑफ साउंड ऑफ 2 guns, कितना टाइम होता है बीच में टाइम इंटरवल कितना होता है? 6 minutes का ही टाइम इंटरवल होता है. भाई पहला गन शॉट होता है, उसको सुनाई पड़ता है एक डेफिनेट टाइम के बाद में, दूसरा गन शॉट भी सेम टाइम के बाद में उसको सुनाई पड़ता है, तो 6 minutes का गैप होता है दोनों के बीच में. इजंट इट सो? बट दैट पर्सन वॉज ट्रेवलिंग, ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग और रनिंग और व्हाटसोएवर, ठीक है. तो वो ट्रैवल कर रहा था और इस वजह से क्या हुआ है, फर्क क्या हुआ है कि उसको दोनों गन शॉट के बीच का जो टाइम है वो 6 minutes की बजाय 5 minutes 52 seconds ऑब्जर्व किया उसने. कम टाइम उसको लगा, कम टाइम लगा. इजंट इट सो? और अगर कम टाइम लगा इसका मतलब क्या हुआ कि ही प्रॉब्ली वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द लोकेशन जहां से कि फायरिंग हो रहा था. क्योंकि अगर वो दूर जा रहा होता तो टाइम ज्यादा लगता उसको, 6 minutes से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता सुनाई पड़ने में. इजंट इट सो? डिस्टेंस कब कम, टाइम कब कम होगा? जबकि दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे, यानी कि गन शॉट और वो पर्सन दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रहे थे. इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? इज दैट क्लियर? तो यानी कि पहला जब गन शॉट सुनाई पड़ा पर्सन को, ठीक है, इफ दिस इज द पर्सन, फर्स्ट गन शॉट जो उसको सुनाई पड़ा वो लेट अस से दिस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर सुनाई पड़ा है. अब सेकंड गन शॉट यहां से फायर तो 6 मिनट के बाद में किया गया, बट इस बंदे को लेट अस से ही वाज हियर,
थोड़ा डिस्टेंस आगे आ गया, तो सेकंड गन शॉट जो इसको सुनाई पड़ा है वो इस लोकेशन में सुनाई पड़ा है। और फॉर दिस पर्सन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स इज 5 मिनट्स 52 सेकेंड्स। गन फायर किया गया 6 मिनट्स के बाद में, ठीक है, विच इंप्लाइज कि अगर ये पर्सन अपनी इस पोजीशन पे ही रहता तो सेकंड गन शॉट इसको कितने टाइम के बाद में सुनाई पड़ता, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस वुड हैव बीन, तब इसको सेकंड गन शॉट कितने सेकंड के बाद में सुनाई पड़ता, 6 मिनट्स के बाद में सुनाई पड़ता। और इजंट इट सो, तब 6 मिनट्स के बाद में सुनाई पड़ता। बट क्योंकि ये पर्सन आगे आ गया है तो अब इसको कितने टाइम के बाद में सुनाई पड़ रहा है, 5 मिनट 52 सेकंड के बाद में सेकंड वाला गन शॉट, सेकंड वाला गन शॉट, ठीक है। एक्चुअल में दिस इज नॉट, ये डिस्टेंस नहीं है जितना कि साउंड को लग रहा है ट्रैवल करने में 6 मिनट्स का टाइम नहीं लग रहा है साउंड को, 6 मिनट्स के बाद में फायर किया है, इजंट इट सो। ये जो डिफरेंस आया दोनों के बीच का, दैट इज बिकॉज ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल टू 8 सेकेंड्स जितना साउंड ट्रैवल करेगा 8 सेकेंड्स में, क्योंकि ये अगर ये अपनी पोजीशन पे ही रहता, अगर ये अपनी पोजीशन पे ही रहता तो उस केस में उसको 6 मिनट्स लगते, बट क्योंकि आगे आ गया है इसलिए अब इसको 5 मिनट्स 52 सेकेंड्स लग रहे हैं, यानी कि 8 सेकेंड्स का ये जो टाइम कम हो रहा है, इसका बच रहा है, दैट इज बिकॉज दैट पर्सन हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द गन शॉट। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? विच इंप्लाइज कि 8 सेकेंड्स में जितना साउंड ट्रैवल करता, साउंड की स्पीड है 330, 330, उतना ही ये पर्सन ट्रैवल किया है 5 मिनट्स 52 सेकेंड्स में, उतना ही ये पर्सन ट्रैवल किया 5 मिनट 52 सेकेंड्स में, और 5 मिनट 52 सेकेंड्स कितना हुआ, 352 सेकेंड्स में उतना ही ये पर्सन ट्रैवल किया है। तो अगर पर्सन की स्पीड s मान लेते हैं तो 352 इंटू एस इज इक्वल टू 8 इंटू 330। इस पूरे इक्वेशन का क्रक्स यही है, इक्वेशन 8 इंटू 330 इज इक्वल टू 350 इंटू एस। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? सो एस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 330 डिवाइड बाई 352। 11 से जाएगा ये 30 टाइम्स, ये जाएगा 32 टाइम्स, सो 8 इंटू 30 बाई 32 यानी 30/4, 7.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। किलोमीटर पर आवर में दिस विल बी इक्वल टू 18/5 करोगे तो दिस विल बी 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड। अब इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला सिनारियो, अगर वो पर्सन अपनी पोजीशन पे ही रहता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, फायरिंग इस पोजीशन से हो रहा है और पर्सन दोनों केसेस में अपनी पोजीशन पे है, तो 6 मिनट्स के बाद में उसको सुनाई देता सेकंड गन शॉट, सेकंड गन शॉट उसको 6 मिनट्स के बाद में ही सुनाई देता, इजंट इट सो? ठीक है, बट क्योंकि वो पर्सन वो खुद भी ट्रैवल किया है तो हुआ क्या सेकंड केस में कि गन शॉट यहां से साउंड की स्पीड, साउंड अपना ट्रैवल कर रहा है और वो पर्सन भी ट्रैवल कर रहा है, इजंट इट सो? तो वही सेम जो डिस्टेंस है जो कि अकेले साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगता, वो सेम डिस्टेंस दोनों ने साथ में मिलकर ट्रैवल की, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो साउंड की स्पीड से 330 इंटू एक सेकेंड, इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे स्टार्ट में एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में 6 मिनट्स मैंने लिख दिया था कि देखो ये जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने में जो साउंड को टाइम लग रहा है, दैट लेट अस से दैट इज इक्वल टू टी मिनट्स या टी सेकेंड्स, जो भी हो, टी मिनट्स मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस टी मिनट्स है। तो ये जो पर्सन ट्रैवल किया है इसकी वजह से 8 सेकेंड्स कम हुआ है ये गैप, ठीक है, यानी कि दिस विल बी t-8। इसका क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 6 मिनट्स, क्योंकि 6 मिनट्स के बाद में गन फायरिंग हुआ है, स्टार्टिंग में जो गन फायर हुआ और जो सेकंड गन फायर हुआ उनके बीच का जो गैप है दैट इज 6 मिनट्स, ठीक है, और उसी को सुनने में इसको डिफरेंस लगा है 5 मिनट 52 सेकेंड्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT and join my telegram channel, that is telegram group, that is CATZAT MBA.
दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.